इस वीडियो में मैं श्रीलंका में घूमते घूमते निकल गया हिरुवडाना विलेज से एसीवेरा स्पाइस गार्डन, जहां पर मैंने एक्सप्लोर किया ढेर सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो कि पेड़ पौधों से बनते हैं। उसके बाद मैं अपने अगले पड़ाव यानी कि श्रीलंका के सेक्रेट शहर कैंडी के लिए निकल गया और वहां पर मुझे टेम्पल ऑफ द टूथ रिलिक में भगवान बुद्ध के दांत के अवशेष देखने का मौका मिला। इस टेम्पल का बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। टेम्पल घूमते घूमते काफी देर रात हो चुकी थी, तो मैंने डिसाइड किया सीधे अपने होटल जाने का। अगली सुबह जब मैं उठा तो यकीन मानिए होटल से व्यू बेहद खूबसूरत था। जब आप ट्रैवल करते हो और अगर उस वक्त आपको हर एक एहसास खुशनुमा लगने लगे और दिन भर की ट्रैवलिंग भी आपको थका ना सके, तो यकीन मानो आप ट्रैवलर बन चुके हो। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैं सेम एक्साइटमेंट बरकरार रखते हुए निकल गया हूँ हिरुवडाना विलेज से एसीवेरा आयुर्वेदिक विलेज, जो कि मेरा अगला स्टॉपेज है। उसके बाद मैं श्रीलंका के सीक्रेट सिटी कैंडी जाऊंगा, जहाँ पर रिलीजियस प्लेस टेम्पल ऑफ द टूथ रिलिक एक्सप्लोर करूंगा। When I close my eyes, पहुंच गया स्पाइस गार्डन और बस अभी जा रहा हूँ अंदर, उसके एक्सप्लोर करता हूँ कि कैसा है वो स्पाइस गार्डन और दिखने में क्या है, क्या वैरायटी ऑफ स्पाइसेस है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं हम। What we call this place? Ayurvedic village, Isivara Ayurvedic village. सॉरी, Isivara Ayurvedic village. इसेवेरा आयुर्वेदिक प्लेस। इस जगह का नाम है इसेवेरा आयुर्वेदिक विलेज एंड स्पाइसेस भी यहीं पर हम एक्सप्लोर करेंगे, जो भी वैरायटी ऑफ स्पाइसेस हैं। Herbs, herbals, medicine. एंड हर्बल्स आल्सो, मेडिसिन आल्सो। योर गुड नेम? Vinod. Vinod. So Vinod is telling me that we will be exploring herbals and medicines also over here besides spices. It's a pepper plant, okay? Yes, it's a creeper. It wants to go with other tree like a vine. But you know the black pepper, white pepper, we get from the same plant. Okay. But now only season starts at the moment. Have a look. Pepper only grows here. Okay. In this part pepper This grows. part, yeah, Okay. right. Because of the tiny things, we can see that. Yeah. But the black and white, we get from the same plant. Okay. First we get the green peppercorn, and after picking them, we dry in the sun, it turns like black. Okay. The green becomes after ripe like red. Oh. This grass from here. Okay. This oil directly from the grass, we crush and get it. Okay. Got it. Excess. Right. And also smell and gas it. You can see the oil. Yeah. It is there. Smell it. Yeah, we use What is this leaf in tea also in India. This is called lemongrass. Okay. But this is not lemongrass. Same family of lemongrass. Citronella. 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 Citronella to get the oil. Lemongrass or is in food. There are two different families. Okay. This is a pure organic oil against mosquitoes, insects. This one Okay. like a spray for the body. Okay. Even with water, cleaning and mopping, like air freshener. So we can spray it on our body. There is as no well. harm. No of harmless. it. Because natural. Okay. And also chemically made, looks like transparent with alcohol. This is organic. Smell this one. Okay. Same smell of the grass. Rub and smell it. स्मेल काफ़ी अच्छा है और ये कह रहे हैं कि इसको बॉडी पे लगा करके आप मॉस्किटो वगैरह दूर कर सकते हो। एंड वेयर एल्स वी कैन यूज इट? Like mopping. With Mopping for also. cleaning, like air freshener. Even Okay. the burner. Okay. Europeans use the burner as well to get nice cosmetic smell. Yeah. Citronella oil. And there is no further preservative No are preservatives. used? No. Okay. Only extraction. ग्रेट। कितनी सारी चीज़ें हैं जंगलों में और हमें पता ही नहीं है। पेड़ पौधे से जो चीज़ें बनाई गई हैं उनके बारे में भाई जनाब बता रहे हैं ये, और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनके बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं क्या चीज़ें हैं। और ये भी वो बता रहे हैं कि इस प्रोडक्ट्स को आप विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उनके साथ देख रहा हूँ, अगर कुछ पसंद आया क्योंकि सारी नेचुरल चीज़ें हैं तो ले सकता हूँ। बट The white flower turns into pot, and after 6 months we get a fruit. Okay. It's in chocolate. Cocoa tree. कोको ट्री, Yes, this is cocoa tree. Cocoa grows from the trunk, branches, any part, and have a look the big fruit there. Yeah, at the Top, on yes. the top there are some fruits also. Yes, the big one. And when it ripes, it turns like yellow. Okay, so cocoa is also there in Sri Lanka. This is native to Sri Lanka.
the iconicity of this place, especially Santa Patricia. So many big FMCGs like Cadbury, they Cadbury's- must be taking cocoa from Seeds. here only, and they Seeds. used to process it to make their chocolate. Chocolate. So I can see there is one cocoa fruit also. Yeah. Here is it? This one is cocoa fruit. Salah is a ridiculous scientific name. Okay. This is a very, very important plant in the world. Very famous in Sri Lanka only. And once the plant becomes huge, we cut the root. Out Okay. of the root, we make the mark. At night, we put some water, and morning we drink it, especially for diabetic patients. It contains natural insulin. It gives natural glucose as well. Okay. The one product can be used for long term, without buying the pills, tablet. Okay. Got it. Scientific name is Sia Salacea reticulata. Reticulator. What we call it in Ayurvedic, English? Not English. Ayurvedic name, Patala Imbutu. Patala imbuto. Okay. Okay. Without buying the pills, we can keep using for long term for this product. Can I hold it? You're right. But you have to So I can see water color has changed. In it. changes. You're right. It doesn't dry. तो आप ये देख सकते हो, ये पेड़ का रूट है जिसको काट करके इन्होंने ये मग बनाया हुआ है, और इसके अंदर जो पानी है इसका कलर चेंज हो गया है. हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू चेंज द वाटर कलर? 6 hours. 6 hours. You're right. And it is good for diabetic persons. You're right. Without buying the pills, Okay. one client can buy 2 pieces of this. Otherwise, customer not allowed. आपने दालचीनी मसाला का तो नाम सुना ही होगा. ये हर्बल दालचीनी की बात कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में सिनेमन बोलते हैं. अब वो मुझे दिखा रहे हैं कि वो पेड़ के सिनेमन पेड़ के ब्रांच से कैसे वो सिनेमन निकालते हैं, वो शोकेस करने जा रहे हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं. देखते हैं. Right, have a look now. First of all, we have to remove the skins ओके. inside. Skins always used like compost. But we get cinnamon inside, inner bark. Secondly, is removing the moisture with a brass tool. Why is using brass tool? Brass tool doesn't give any flavor to the bark. We can't use any other tool, only brass. ब्रांच के स्किन को निकाल रहे हैं, उसको पील ऑफ कर रहे हैं. Finally, it rolls in the stick, cinnamon stick. ओके. We put like that way. Like that. व्हाट ही इज डूइंग एक्चुअली? Making rod. रॉड. ओके. Roll it. This is the cinnamon stick. Finally, it's done. So when it will dry, it will become cinnamon stick. Have a look. We dry the hair. So it will become like this. Yes. Not brown. Light ये in स्किन को color, पिल ऑफ किया, very इसके soft. बीच में वो कुछ पुराने छिलके पड़े तो वो डाल दिया, और ये जब सूखेगा तो ऊपर आपको ये दिख रहा होगा लगा हुआ सिनेमन रखा हुआ. ये ऐसे थोड़े हार्ड हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे. फिलहाल तो ये फ्रेश है तो थोड़ा मुलायम है. जनाब विनोद ने मुझे और भी ढेर सारे स्पाइसेस और हर्ब्स से रूबरू किया. यहाँ पर मुझे बहुत कुछ पहली बार पता चला. एंड यकीन मानो, ट्रैवल करने का ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप हर डेस्टिनेशन पे कुछ नया सीखते हो. यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल मेडिकली एंड एस्थेटिकली कितना बेनिफिशियल है. यहाँ पर 100% नेचुरली प्रोड्यूस्ड हर्ब्स एंड स्पाइसेस पैकेज्ड फॉर्म में रखे हुए थे जो आप खरीद सकते हो. खैर, कुछ शॉपिंग करने के बाद मैं निकल गया कैंडी सिटी के लिए. Things you asked me for, and I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. श्रीलंका में एक चीज़ पता चली. मैं यहाँ पर गाड़ियों के नंबर प्लेट के बारे में ये चीज़ पता चली है. कोई भी गाड़ी हो, बीट 4-व्हीलर और बस, फ्रंट नंबर प्लेट विल बी ऑफ वाइट कलर, और जो बैक साइड में नंबर प्लेट होता है इट विल बी ऑफ येलो कलर. तो मैं अभी जा रहा था तो मैंने कबीरा जो मेरे साथ गाड़ी चला रहे हैं उनसे पूछा कि ये मर्सिडीज देखी, और वो येलो नंबर प्लेट थे. मैंने सरप्राइजिंगली पूछा कि न्यू कंट्री पीपल ड्राइव मर्सिडीज एज ए कैब ऑल्सो. तो ही टोल्ड मी दैट इट इज़ प्राइवेट कार, इट इज़ नॉट टूरिस्ट व्हीकल. सो मुझे अजीब लगा. मैंने कहा ये तो येलो नंबर प्लेट है. इंडिया में हमारे यहाँ येलो नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ कैब में चलती हैं और टूरिस्ट व्हीकल होती हैं, पर श्रीलंका में ऐसा नहीं है. एंड प्राइवेट जो गाड़ियाँ होती हैं, फ्रंट के नंबर प्लेट वाइट होते हैं और पीछे वाले येलो होते हैं. अलग कंट्री, अलग रूल. बट बाय द वे, हाउ यू डिफर टूरिस्ट व्हीकल फ्रॉम प्राइवेट व्हीकल? There's no identity for that.
Okay, there is no separate identity for that. No separate. It's only registration number, and from these things you would be differentiating between tourist vehicle and private vehicle. Yeah. Okay. कैंडी शहर से होते हुए मैं एक सैक्रेड प्लेस पे पहुंचा हूँ जिसका नाम है टेम्पल ऑफ टूथ रिलिक। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है, और जो कि एक्चुअली में है, यहाँ पर भगवान बुद्ध की एक टीथ रखी हुई है इस टेम्पल के अंदर, जो कि रियल में उनकी ही टीथ थी। तो बस ये कैंडी शहर ही पूरा बहुत ज़्यादा सेक्रेड है, और उसमें ऐसे टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरे पीछे एक बहुत बड़ा स्टैचू है गौतम बुद्ध जी का, वो मुझे सामने से दिख रहा है, शायद कैमरे में कैप्चर नहीं होगा, बट एनीवेज मैं जल्दी से निकलता हूँ और इस टेम्पल में दर्शन कर लेता हूँ, क्योंकि क्लोजिंग टाइम 7:45 का है और अभी 7:35 हो रहा है। तो शायद अगर चेक करता हूँ मुझे टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोशिश मैं करता हूँ। बट चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, दर्शन करता हूँ, उसके बाद आपसे दोबारा बात करता हूँ। टेम्पल ऑफ द टूथ रिलिक अपने आप में बहुत ही सेक्रेड बुद्धिस्ट टेम्पल है, और ये सिर्फ श्रीलंका में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक्नॉलेज्ड रिलीजियस प्लेस है। यहाँ भगवान बुद्ध के दांत का अवशेष रखा गया है, जिसे इम्पोर्टेंट और पवित्र माना जाता है। इस टेम्पल को श्रीलंका में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज सिन्हाला में श्री डालाडा मालीगावा कहते हैं, और ये मंदिर रॉयल पैलेस के प्रेमिसेस में है, जहाँ पर बहुत ग्रीनरी देखने को मिलती है। इस जगह में दुनिया भर के लोगों की आस्था है, और वो डिवोटी यहाँ आते हैं और माथा टेकते हैं। भगवान बुद्ध के दांत के अवशेष को एक सोने से बने हुए ट्रंक में रखा गया है, और इस अवशेष को खास मौकों पर निकाला जाता है शोभा यात्रा में। ये मंदिर देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसका इंट्रिकेट आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड सीरीन सराउंडिंग्स एक अलग ही सुख का, एक अलग ही पीस का एहसास कराती है, जैसा कि आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाओगे तो आपको महसूस होता है। द टेम्पल ऑफ द टूथ रिलिक न केवल एक रिलीजियस प्लेस है, बल्कि ये श्रीलंका की कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज का सिंबल भी है। दिन भर दौड़ भाग करने के बाद मैं फ़िलहाल अभी होटल टोपैज आ गया हूँ। यहाँ पर आज का मेरा स्टे है जो कैंडी में ही है, एंड कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के निकलना होगा मुझे। सो होटल देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं कुछ फुटेजेस आपके लिए डालूंगा वीडियो में, आप देखना, बताना कमेंट में कि होटल कैसा है। फ़िलहाल तो मैं अपने रूम पे जा रहा हूँ, चेक इन कर लिया है। योर गुड नेम? Dilakshi. Okay. So I am from New Delhi and I have come here to travel Sri Lanka. Okay. This is my room. Okay. This is like sitting area, or this is my bedroom. रिक्शा से बात कर लिया, हालचाल हो गए। अब मैं वॉशरूम भी देख लेता हूँ कैसा है। ये है वो वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, बढ़िया लग रहा है देखने में। सफाई हो यार, देखो वॉशरूम में ना, तो जब आओ आप कहीं तो ऐसे तो वॉशरूम में सफाई होना चाहिए। गंदे वॉशरूम जो दिखते ना अजीब सा लगता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। बढ़िया, यहाँ पर 2 चेयर रखे हुए हैं, यहाँ पर भी बैठ सकते हो, बेडरूम है ये। और उसके बाद यहाँ पर भी आपका सिटिंग एरिया है, तो इट्स ए काइंड ऑफ स्वीट आप बोल सकते हो। अभी तो ये सामने खिड़की पे आपको नज़ारा उतना अच्छे से नहीं दिखेगा, पर कल सुबह मैं आपको यहाँ से वो नज़ारा दिखाऊंगा कि मेरे इस होटल रूम से, टोपैज होटल रूम से व्यू कैसा है। तो मॉर्निंग में करते हैं। चलो, अभी मैं बहुत ज़्यादा सच में थक गया हूँ, तो पहले तो डिनर करूँगा, देन उसके बाद सो जाऊँगा। मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। काफ़ी बड़ा और स्पेशियस रेस्टोरेंट है इनका, और आइटम्स भी बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। पहले मैंने अपना डिनर ले लिया है, और खाने का ऑप्शन तो इस होटल में बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करा है कि यहाँ सारे होटल्स में खाने का ऑप्शन ज़्यादा है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए, वेजिटेरियंस के लिए उतना कुछ है नहीं। तो मैंने फ़िलहाल नॉन वेज में भी, सिंस वेज में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो नॉन वेज भी मैंने कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही ली हैं। ये मैंने यहाँ पर सी फूड लिया हुआ है, जिसमें क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन, ये सारी चीज़ें हैं।
उसके बियॉन्ड भी मैं ज़्यादा कुछ सी फूड खाता नहीं हूँ, तो मैंने शेफ़ को बुला के पूछा कि इसमें वो सारी चीज़ें क्या क्या मुझे बताओ। तो उसके बताने के बाद ही मैंने ये सी फूड लिया हुआ है यहाँ पर। साथ में सैलेड है, पापड़ है, एंड मैंने ये चिकन लिया हुआ है, चिकन करी, वो खाऊंगा। देखता हूँ कि टेस्ट कैसा है। मैं थोड़ा आइसोलेशन में बैठा हूँ, बट आई एम नॉट श्योर आवाज़ मेरी कितनी ढंग से आ रही होगी। यहाँ पर रेस्टोरेंट है तो शोर ज़्यादा है, बर्तन की आवाज़ है, फॉरेनर्स काफ़ी बैठे हुए हैं, बट वो भी काफ़ी शोर मचाते हैं खाना खाते हुए। ये मुझे आज यहाँ रियलाइज़ हो रहा है जब मैं इस होटल में बैठ कर के डिनर कर रहा हूँ अपना। मैं जहाँ पर बैठ कर के अभी डिनर कर रहा था, वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर इनका किचन था, टोपेज होटल के रेस्टोरेंट का। एंड एक जनाब थे जो कुकिंग ऑयल पे पोर्क को स्टेयर कर रहे थे, मतलब उसको फ्राई कर रहे थे पोर्क को। का स्मेल मेरे टेबल तक पहुंच रहा था, और थोड़ी देर बाद वो स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई कि मेरा बैठने का मन ही नहीं हुआ वहाँ पर। और डिनर मैंने आधा अधूरा किया हुआ था, बट मैंने उसको छोड़ा और थोड़ी दूरी पर शिफ्ट हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी जगह है। अगर आपको दिख रहा होगा तो वो कॉर्नर में जो जगह दिख रही है, वो वाली जगह है जहाँ पर पोर्क को फ्राई किया जा रहा था। ये जैसे हमारे जैसे लोग जो पोर्क तो खाते ही नहीं है और उसके स्मेल से बहुत तकलीफ़ होती है। अब वो स्मेल अपने दिमाग से निकालने के लिए अपने ज़बान, हालांकि मैंने खाया नहीं, बट फिर भी वो इतना ज़्यादा धुआं आ रहा था कि वो मेरे ज़बान पे ऐसा लग रहा है कि चला गया है और मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए मैंने ये डेजर्ट लिया हो, कलरफुल और डिलीशियस डेजर्ट। इसको खा करके थोड़ा अपने दिमाग को डाइवर्ट करता हूँ। बाकी मेरे बैकग्राउंड में ये आपको शहर दिख रहा है, कैंडी शहर, जो अभी उतना विजिबल नहीं है। कल सुबह होगा तो मैं आपको ये शहर पूरा दिखाता हूँ इस रेस्टोरेंट में।